Good morning, students. Today we will discuss about the chapter Carbon and its compound. In this chapter, we will study about the many compounds which have wide-ranging importance for us and about the organic compounds of carbon. So first of all, what is the role and importance of carbon in our day-to-day life? Carbon is present in the atmosphere as well as in the earth crust in the form of a carbonate, hydrogen carbonate, coal, charcoal, petroleum, etc. And it is also found in the free state in the form of diamond, graphite and fullerenes. These are the allotropic forms of carbon. And as we know that diamond having a shiny and hard in nature with a three-dimensional structure, and graphite having the blackish nature, lustrous, quite lustrous but black in color, having a two-dimension structure. So, and these are found in the books, medicines, etc. Similarly, how the carbon bonds or what is the bonding in carbon? These are the covalent bond. How? Carbon having the atomic number 6 with electronic configuration 2, 4 and 2 electrons are present in the K shell and 4 electrons are present in the L shell. And the electrons present in the last shell is known as the valence electrons. Therefore, in the carbon there are 4 valence electrons and it depends upon the gaining, losing and sharing of electrons of the stability of the compounds. But in case of a carbon, it cannot lose or gain the electrons because if it gain 4 electrons, it will be difficult for the 6 protons to hold the 10 electrons. And similarly, if it will lose 4 electrons, then it needs a large amount of energy to lose 4 electrons. But here one option is left, that is the sharing. So it will share its 4 electron with the other atom and forms a covalent bond to attain the stability. Hence, valency is 4 and carbon is tetravalent in nature. Tetra means 4. And carbon covalent bond is defined as a chemical bond formed by the sharing of electrons. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या है कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. कितने टाइप के आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं ये पढ़ेंगे. सो हम यहाँ से क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो आपके डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का आपका पेयर बन रहा है थ्रू द शेयरिंग. सो लेट्स डिस्कस विद द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. If one pair of electron is shared, then it forms a single covalent bond. Similarly, if two pairs of electrons are shared, then it forms a double covalent bond. Similarly, three pairs of electrons results in the formation of a triple covalent bond. Let's take an example of a hydrogen molecule. Hydrogen having the atomic number 1 with electronic configuration 1. Hence, its valence electrons will be 1 and it only needs 1 electron to attain the stability. That's why it shares only one pair of electrons which forms in the results in the single covalent bond like this shown in the image. Similarly, how double covalent bond is formed? We are taking the example of a oxygen atom, oxygen molecule. Oxygen having a atomic number 8 with electronic configuration 2, 6. Hence, there are 6 valence electrons. So, it only need 2 electrons to attain the stability. And
two oxygen atoms share two pairs of electrons results in the formation of a double covalent bond. Like this, one oxygen atom having a 6 electrons shown by the cross mark. Similarly, second oxygen atom also having the 6 electrons, 6 valence electrons, and shown by the cross marks, and they will share a two pair of electrons to form a double covalent bond. Similarly, triple covalent bond is formed by the 3 pairs of electrons. For example, we are taking the nitrogen atom with atomic number 7. Electronic configuration is 2,5. There are 5 valence electrons in its last shell, and it needs only 3 electrons to attain the stability. So, one nitrogen atom shares 3 electrons with the other nitrogen atom and forms a triple covalent bond. So students, जस्ट ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपके कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके शेयरिंग में आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स कि जो आपके क्या है हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं. अब क्या है हमने अभी जो पढ़ी हैं कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, इसमें हमने क्या है जस्ट क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया है. बट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, कार्बन क्या है हम कैसे हाइड्रोजन या फिर अदर एटम्स के साथ क्या करता है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो उसे हम कैसे शो करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से. वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल हैविंग द फॉर्मूला CH4. इट मीन्स कार्बन आपका क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा और आपके क्या है 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड शेयर कर रहा होगा. वैसे भी आपका कार्बन जो है वो क्या है टेट्रावैलेंट है. टेट्रावैलेंट का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. ऑलवेज कार्बन क्या फॉर्म करता है 4 बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका कार्बन मीथेन मॉलिक्यूल में 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ. सो कार्बन का बच्चे एटॉमिक नंबर आपका है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4 एंड 4 क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे ये क्या करेंगे 4 बॉन्ड बनाएंगे आपके हाइड्रोजन के साथ. हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या है आपके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो आपका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके डॉट से दिखाया गया है हाइड्रोजन का. ठीक है बच्चे, और आपके पास क्या है कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये किससे क्रॉस मार्क से दिखाए गए हैं, लाइक दिस, ये क्रॉस मार्क से दिखाए गए हैं. सो आपका क्या होगा जब एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा आपका एक बॉन्ड. तो सिमिलरली हम क्या करेंगे CH4 में एक CH बॉन्ड दिखाने के लिए मीन्स एक CH बॉन्ड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कर देंगे लाइक दिस. ओके, तो सिमिलरली हम क्या है ये सारे CH बॉन्ड दिखाने के लिए पेयरिंग कर दिया है हमने. ठीक है बच्चे, देन आपके पास क्या है कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो शेल है एल शेल है उसको फिलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो आप क्या करेंगे एक बिग सर्कल लगाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो शेयरिंग से आपके पास क्या आएगा बच्चे, क्या बन जाएगा आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल लाइक दिस. ओके, सिमिलरली क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन द इथेन मॉलिक्यूल क्या होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इथेन फॉर्मूला दैट इज C2H6. इथेन इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. ओके, इसमें आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल बनते हैं. तो सिंगल मॉलिक्यूल्स आपके CH एंड CH ही होंगे. ओके, सिमिलरली क्या है आप क्या करेंगे एक कार्बन 2 कार्बन है बच्चे आपके 2 कार्बन शो करेंगे हम. 2 कार्बन के आपके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आपके पास 1 कार्बन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली क्या है आप सेकेंड कार्बन शो करेंगे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये तो आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए हैं. नाउ आप क्या करेंगे हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करेंगे बाय द डॉट. ओके, तो आपके पास 6 हाइड्रोजन है. तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके 2 कार्बन के ऊपर 3
हाइड्रोजन इधर 1 फर्स्ट कार्बन पे एंड 3 सेकेंड कार्बन पे। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, आप बॉन्ड्स बनाएंगे, CH बॉन्ड्स बनाएंगे। तो एक CH बॉन्ड किससे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 2 इलेक्ट्रॉन से शो करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको सर्कल से राउंड कर देंगे। ठीक है, ये CH क्या है, आपका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है बच्चे, जितने भी आपके CH बॉन्ड हैं ये सारे आप क्या करेंगे, CH बॉन्ड्स बना लेंगे। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाएंगे। हाउ, कार्बन को क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने बॉन्ड, अपने क्या है कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज एंड दीज, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। सो आपके पास जो कार्बन, फर्स्ट कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और सेकंड कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म कर देंगे और ऑक्टेट को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली आप सेकंड कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन मॉलिक्यूल। ओके, सिमिलरली क्या है, हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स का किया हुआ है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है आपके पास। तो क्या है बच्चे, शेयरिंग, आपके पास एक एक हाइड्रोजन के पास क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का, सिमिलरली दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बच्चे, आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा आफ्टर शेयरिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली क्या है, फ्लोरीन एटम में, फ्लोरीन का बच्चे एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आपने शो किया, ठीक है, डॉट से। सिमिलरली सेकंड फ्लोरीन को भी आपने ऐसे शो किया। तो आपके पास जस्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबिलिटी के लिए, मीन्स ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 7 ऑलरेडी उसके पास है। तो क्या करेगा बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का ये वाला और इस इलेक्ट्रॉन का सेकंड फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने के बाद क्या बनाएंगे, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। सिमिलरली हम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एंड द मैनी मोर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है बच्चे, नाउ कार्बन कैन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है बहुत सारे कंपाउंड्स को, बिकॉज क्या है, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एंड फर्स्ट वन इज द कार्बन कैन फॉर्म bonds with the other carbon atoms in the form of a long chain, branch chain and closed chain. And why it is forming these large number of compounds? Due to the property of a catenation. Catenation property की वजह से बच्चे क्या करता है, मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, ये लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और क्लोज रिंग्स बना सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट रीज़न था इसका कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन जो है इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है। एंड सेकेंड वन इज द इट्स वैलेंसी इज अ 4 एंड इट कैन ईजली फॉर्म्स द bonds with the other carbon atoms or other elements like the hydrogen, oxygen, nitrogen, halogens etc. And long chain क्या होती है आपके पास, just like this. branch chain क्या होगी आपके पास, एक कार्बन के ऊपर एक और कार्बन क्या आपका शो हो रहा है, तो दिस इज नोन एज द ब्रांच चेन। एंड क्लोज्ड रिंग क्या होगी बच्चे, आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं और क्लोज चेन भी कह सकते हैं। क्लोज चेन जैसे कि आपके 6 या 5 की या 4 की फॉर्मेशंस हैं, 4 कार्बन्स या 4 कार्बन्स आपके 5 कार्बन्स क्या है, 6 कार्बन्स क्या है, एक रिंग में अटैच हैं। सो दीज आर नोन एज द क्लोज्ड रिंग्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड कार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन इज द combination of hydrogen and carbon. So hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen atoms. And the study of these hydrocarbons is known as the organic chemistry. Similarly, second term आपके पास है saturated hydrocarbons. Saturated means
सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड आपके पास जो है हाइड्रोकार्बन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्केन फर्दर क्या है, मीथेन, मीथेन में क्या आपके पास सारे के सारे क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या है बच्चे, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली आपके पास इथेन है, इथेन इज अ एल्केन एंड here only single covalent bonds are formed between carbon and hydrogen, so this is known as, these are known as the saturated hydrocarbons. Similarly unsaturated hydrocarbon means डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, जहाँ आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल एल्कीन, एल्काइंस, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, ओके। सफिक्स क्या है आपके पास, ईन है बच्चे, जहाँ आपके पास ईन आ जाता है वो क्या होता है, आपके एल्कीन्स होते हैं, ओके। एल्कीन जैसे कि इथीन, प्रोपीन, इनमें क्या आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी क्या आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। प्रोपीन का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन। ठीक है बच्चे, तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, ईथ का मतलब 2 कार्बन है। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, तो आपके 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। तो सिमिलरली आपके क्या है, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है, ओके। तो दिस इज नोन एज द प्रोपीन। और वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए विद द हाइड्रोजन एटम। रिमेनिंग जो आपके पास बचेगी वैलेंसी वो किससे कंप्लीट हो जाएगी, आपके हाइड्रोजन एटम से। सिमिलरली क्या है, अल्काइंस का हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, in which triple covalent bonds will form between the carbon atom and the hydrogen. For example, ethine. Here triple bonds will form between the carbon carbon and 2 hydrogen atoms are attached with it in it. Another example is propine, like this. Now the next topic is होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में आपके पास क्या होता है, आपके पास सक्सेसिव कार्बन्स में क्या होता है, CH2 ग्रुप क्या करता है, वेरी करता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल आपको क्या चेकआउट करना है कि सक्सेसिव मेंबर्स में क्या है, CH2 ग्रुप का क्या है, डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एल्केन, आपके पास एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें आपके पास क्या है बच्चे, मीथेन है, इथेन है, इनमें क्या है, जस्ट 1 कार्बन का डिफरेंस है, ओके। और आपके पास 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर आप इथेन को मीथेन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जस्ट 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। सिमिलरली आप क्या है, इथेन एंड प्रोपेन का एग्जांपल लेंगे तो आपके पास क्या है, जस्ट CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। सिमिलरली इन द वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन, हियर आर ऑल्सो अ डिफरेंस ऑफ जस्ट अ CH2 ग्रुप। सो इसे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, जहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। Now it's all about the today's lecture. Thank you.